Good morning, all. On behalf of Electronics Communication, I am welcome Mr. Aditya Kumar Singh, who is today's guest of honor. He will deliver the lecture on Growth Hacking Industry 4.0. So, before starting, just I will give some brief introduction about the company as well as the Mr. Aditya. So, Mr. Aditya is a business and research head of the Dark Factoral, and this company they has started as an entrepreneurship journey since February 2017. His mission is global conclusion by providing connectivity solutions for everyone to the global neural network. The company provides specialization service to their clients in domain of behavior psychology of internet users and in the web-based connectivity solutions and IoT infrastructure development. The overall strategy is to do the full-scale, secure technical research and power of their customer with the solution which are not only the global standard but all are economically efficient. The main specialization of his company are providing the embedded system solution, electronics, microprocessors, embedded Linux, and web applications. Also includes web infrastructure development with the IoT solutions. So today he will deliver with traditional data given approach to the market with respect to that global hacking industry, personalized to the IoT solutions and business analytics methodology. So once again, I welcome Mr. Aditya to deliver his lecture. Thank you, sir. Should I start? Yeah, sure. Yeah. Hello, everyone. So as sir introduced, my name is Aditya Kumar Singh and my startup's name is Dark Fractal. मैं भी कुछ टाइम पहले आपकी जगह पे था. I was in Parul University EC departments and then from there I started my startup. So शुरू करते हैं. I think बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं. Around 55 से अब हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं. Sir, थोड़ी देर वेट करें कि should we start? No, Mr. Aditya, you can start. Okay. So let me share my screen. So again, sir, I hope my screen is visible now. Yes, it's visible. Okay. So I've shared my screen and let's start. So as you know, everyone, सबसे पहले मैं अपने startup का introduction दे देता हूँ. We are known as Dark Fractal and industry में we are known for our growth hacking solutions. So आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ग्रोथ हैकिंग फॉर इंडस्ट्रियल 4.0. तो इसमें बेसिक 2 टर्मिनोलॉजीज हैं. ये ऑब्वियसली 2 बड़े बज़वर्ड्स हैं जो आजकल यूज होते हैं इंडस्ट्री में. ग्रोथ हैकिंग बहुत ही नया है और मार्केटिंग में स्पेशली बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं. कई राइट तरीके से, कई रॉन्ग तरीके से. विल डिस्कस दैट. मगर आई वुड लाइक यू बिकॉज हम सब ईसी के मेरा बैकग्राउंड ईसी है एंड आप करंटली ईसी पढ़ रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू परस्यू ईसी. एंड इवन दो फॉर एग्जाम्पल चाहे आप डायरेक्टली जॉब में जा रहे हैं, चाहे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे लेट्स से आप एक हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 को समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली आजकल के सिनेरियो में. So why is that? Let's go to our next slide. Data driven growth. So आजकल obviously हम सब सुन रहे हैं कि data driven ये, data driven वो. See, अभी हम खुद live एक प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं जिसके थ्रू मल्टीपल डेटा कनेक्ट हो रहा है. आई सी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर आर सेंडिंग देयर एनरोलमेंट नंबर्स एंड ऑल, सो दैट दिस इज आल्सो अ डेटा कि जिससे पैरेलली आप अपना अटेंडेंस एक डिजिटली वे में आप अपने टीचर्स तक पहुंचा रहे हैं. प्लस टीचर्स एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जिससे वो बेसिकली, चाहे वो नॉलेज ड्रिवन डेटा हो, चाहे वो ये ऑडियो विजुअल फॉर्म में हो, दे आर सेंडिंग इट टू यू.
मगर ये ऑब्वियसली ये हमारे इंडस्ट्री के लिए ठीक है, मगर व्हेन वी गो टू let's say a manufacturing company, or let's say we go to any kind of big business. Let's say TCS is a big recruiter in our college, so let's say TCS. So what is the difference between जब वो पहले ऑपरेट करते थे और आज के टाइम में ऑपरेट करते थे? डेटा हर एक स्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया. रीजन 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट सेक्शन डेटा का इंपॉर्टेंस, व्हाई डेटा. सो आई होप मुझे इसके बारे में ज्यादा इसको खींचने की जरूरत नहीं है, मगर क्विकली इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा अगर मैं कहूं तो बेसिकली जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप उसको देख सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्म में, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्म में. लेट्स से जैसे यहाँ इस पिक्चर में बार्स एंड ग्राफ्स का एक छोटा सा डेमो दिया हुआ है. सो यू कैन सी ऑल दोस ट्रेजेक्टरी की ओके कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट कलेक्टेड डेटा कि हमारा आने वाले प्रोजेक्शंस कितने होंगे. एंड स्पेशली आज देख रहे हैं कि आज के टाइम में ये जो वॉलेटाइल इंडस्ट्री हो गई है, कोई भी सेक्टर स्टेबल नहीं है. Only people who are surviving and thriving, who are good at who are good, not only good but can efficiently collect, manage, filter, and then use that data to predict their next steps. So let's move to our first terminology, which I want to focus on, Industry 4.0. So Industry 4.0 basically एक terminology जो आजकल टाइम में यूज की जाती है इसलिए. तो पहले सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राफ कैसे 4.0 तक कैसे पहुंचा है. सो ऑब्वियसली काफी लोगों को आइडिया होगा कि इनिशियली ऑब्वियसली हम जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इट वाज वेरी मच मैकेनिकल, राइट. एंड मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल चीजें, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस की बात कर लें, आपने सुना होगा कि पहले प्रिंटिंग प्रेस, ह्यूज प्रिंटिंग प्रेस होते थे एंड यूज्ड टू जस्ट प्रिंट ब्लॉक्स. आप उसको डाई क्रिएट करते थे एंड यूज्ड टू जस्ट प्रिंट द पेपर वन बाय वन. So that was Industry 1.0, right? And then आपने देखा कि obviously you have studied in your history lectures in school that 20th century में we started realizing the difference between कि if we just add a slight mechanism to any kind of operation, वो mechanism much more efficient हो जाता है. चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स की मदद से हो, चाहे वो आप मैकेनिकल एनर्जी के सोर्स की मदद से हो. फॉर एग्जांपल लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई थिंक एक ट्रेन का हमने दिया हुआ है एक एग्जांपल. सो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन 18th सेंचुरी में भी था, मगर इफ वी एडेड अ लिटिल बिट ऑफ मैकेनिज्म इन दैट, चाहे वो स्टीम इंजन की बात हो, चाहे वो जस्ट एक नॉर्मल मैकेनिज्म हो जिसमें चाहे वो पेट्रोल या डीजल व्हाटएवर उस टाइम जो इन्वेंटेड था उसके हिसाब से चल रहा है. सो दैट एडेड मच मोर एफिशिएंट टू दिस लेवल. नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं, जब आप आगे आते हैं तो आप देखेंगे कि आफ्टर 20th सेंचुरी स्लोली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स का आना शुरू हुआ. आपने मॉर्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा कि कंटिन्यूअसली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका पावर बढ़ता जाता है. It gets much more efficient, much more usable, and day by day what happens is कि the cost of it reduces. So what happens is कि especially 1990s के बाद we started seeing the difference कि mechanism automation आना शुरू हो गया. Obviously 90s में it was very early stage, experimental driven भी, मगर आपने सबने सुना है कि जो .com boom था उस टाइम में, जितने भी आज बिलियनियर्स आप देख रहे हैं, चाहे वो बिल गेट्स से, चाहे वो अमेजॉन से लेके, चाहे अमेजॉन के फाउंडर्स जेफ बेजोस हैं उनसे लेके, एवरीबडी स्टार्टेड इन दैट पीरियड. और वो एक मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आज वो बिलियनियर्स हैं. क्यों? क्योंकि द टेक्नोलॉजी वाज न्यू, everybody was looking into कि मे भी कुछ ऐसा हो सकता है, and everybody jumped into this ship and they started all these big ventures. And वो boom इसी वजह से that's why it is a called boom, क्योंकि उसने multiple billionaires and millionaires create किए. And money aside, it created lots of innovation for our industry, for not only our industry but every industry you see in around you. और मैक्सिमम लोग आप एक इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, somebody will be placed in a consulting firm, somebody will go do an MBA and then manage some kind of company or manufacturing agency.
or maybe do some consulting work. So there are multiple things, but the thing is, every operation of yours involves some kind of let's say computerized system, or let's say at least smart vehicles, right? So when you are going from your home to your college, you use a better kind of system, right? जब आप attendance लगाने जाते हैं, so that is a better kind of system. And if we come to the topic of today, that industrial revolution जो हुआ, basically cyber space में जब businesses बढ़ना शुरू हो गए, that is called industry 4.0. industry 4.0 के classic examples हैं जो platforms हम use कर रहे हैं, like Facebook, like Google Meet पे I'm doing, you all are seeing this on I think Facebook Live. So things like that, and multiple sections. Obviously, अगर हम इसको basic platform से हटा के scale up करते हैं next level तक, so you can say that IoT is the next big thing. You can say that AI technology, which we integrate our different stuff, that is a big thing. So steps like that. मगर what you have to understand here is कि ये curve है. So here you can see, if you pay attention a little bit here, the level of complexity with every stage gets increased. And obviously, जब एक normal printing press चल रहा था जो hand operated था and completely manual था, so that was much more easier to operate for a manufacturer process. I'm talking about that. But जैसे जैसे evolution होता गया, what happened was कि as per the manufacturer, the complexity gets increased. And why the manufacturer affords that complexity? Because for the user, it gets much easier. For example, अगर जैसे हम बार बार printing press की बात करें, तो let's take this as a base example. 18th century में अगर आप एक book publish करवानी थी, that was a much complex deal. मगर let's say आपने एक अपनी डायरी लिखी है या फिर अपने poems लिखी हैं. I have few friends who have written some poems and all, and किताबें लिखी हैं उन्होंने, and they have to just worry about their content today, and then just एक publisher को उनको send करना है. That's it. उसका अपना प्लेटफॉर्म बना हुआ है. मोस्ट ऑफ द पब्लिशिंग हाउस, अगर किसी को बुक्स में इंटरेस्ट होगा अपना बुक पब्लिश कराने में, यू विल सी दैट कि मोस्ट ऑफ पब्लिशिंग हाउस मल्टीपल पैकेज चलाते हैं. आप उनको अपना कंटेंट भेजिए, दिल से कि अच्छा ठीक है, इस पैकेज के हिसाब से ये रेट है, हम आपका कंप्लीट डिजाइन करके दे देंगे, हम आपको कंप्लीट दे देंगे, एंड वी प्रोवाइड सर्विसेज फॉर योर बुक टू बी सोल्ड ऑन Amazon, योर बुक ऑल द मेजर प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, Flipkart एंड एवरीथिंग, प्लस उनके जो रिटेल्स में है वो. So from your end, what you have to do is just focus on your content. जो initial money you have to put up front, that's it. बाकी सारा process completely automated है. So see, that is the difference between then and now. So that's why ये जो 4 stages जो हम observe करते हैं पिछले कुछ सालों में, you will see पिछले 2 centuries में, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं. जो 4 मेजर स्टेप्स में अगर हम डिवाइड करें तो 4 मेजर स्टेप्स होते हैं इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0. क्योंकि इट्स वेरी क्योंकि ऑब्वियसली एक नॉर्मल गाड़ी से लेके, एक व्हील से लेके, लेट्स से आज हम लेविटेटिंग ट्रेन्स बना रहे हैं, स्पेस में रॉकेट भेज रहे हैं, ये काफी लंबी जर्नी है. एवरी रजिस्टर इन्वेंटेड, every capacitor, the number of capacitor increase on a chip, every new innovative idea is a step, but we have to collaborate it for an industrial purpose. So that's why हम industry में इसको 4 segments में बांटते हैं. So industry 4.0 जो कि अभी हम कह रहे हैं, ये है. If you want to ask me any questions parallelly, you can. I am looking at the Facebook comment feed over there, तो आप वहां से पूछ सकते हैं. And I think Ravi sir को भी आप directly भेज सकते हैं, तो we can collaborate like that. So I think I should move to the next slide. Okay, so 4.0 जो O है industry, उसके 6 basic design principles क्या हैं? You could look at the text also. It's fine, but the thing is, major आप समझने की कोशिश करिए कि जो मेजर है ये डेटा का कंप्लीट, यही 3 चीजें हैं जो कि मैंने पहले कहा. डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट करना,
डेटा को प्रॉपरली मैनेज करना। मैनेज में क्या आता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप ऑब्वियसली लैब्स आपकी होती हैं एंड जब आप किसी भी सेंसर या फिर किसी भी इक्विपमेंट लेट्स से आप यूज कर रहे हैं मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर ऑब्वियसली आप सबने लैब्स में यूज किया होगा। जब आप मल्टीमीटर से किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेक करते हैं यू विल सी कि बहुत सारा डेटा आता है, राइट? मगर आप एक एवरेज वैल्यू लेते हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। लेट्स से 10 किलो ओम का आपने रजिस्टर लिया है एंड 10 किलो ओम के रजिस्टर को आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो वो 10.1 10.2 10.3 राइट, वो ऐसे आगे पीछे जाएगा, मे बी वो 9.8 9 पॉइंट समथिंग दिखाएगा एंड आप उसका एक जनरल वैल्यू लेंगे कि ओके दिस इज ये 10 किलो ओम का है रजिस्टर। सो वो कैसे किया आपने एंड कि आपने आपको समझे कि ओके ठीक है ये थोड़ा सा एरर आता है, मार्जिन ये ऑब्वियसली फ्लक्चुएट करता है, सो इट्स अ 10 किलो ओम रजिस्टर, यू हैव प्रेडिक्टेड दैट। मगर लेट्स से आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो प्रोग्राम क्या है, लेट्स से मोस्ट सिंपल सेंसर एक LDR यूज कर रहे हैं आप। LDR इज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एंड आपने कोई प्रोसेसर लेते हैं, लेट्स से आर्डिनो लिया हुआ है एंड आर्डिनो में आपने LDR कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो और उसका आप रीडिंग सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करवा रहे हैं। सो व्हाट हैपन इज कि आप देखेंगे कि वैल्यू बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, राइट? और कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करेगी वैल्यू। मगर जब आप उस डेटा वो और मान लीजिए आप वो सारा डेटा स्टोर भी करवा रहे हैं किसी फाइल में, लेट्स से किसी एक्सेल फाइल में स्टोर करा रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन इज कि जब वो आप डेटा स्टोर करवाएंगे ऑब्वियसली यू डोंट नीड ऑल दोस जार्गन्स, आपको एक मोस्ट प्रोबेबल एक क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, राइट? सो आप फिर उसमें फिल्टर्स ऐड करेंगे। फिल्टर्स कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूं कि मुझे फ्लोट में नहीं चाहिए, आई ओनली वांट इन इंटीजर फॉर्म, राइट? सो आपका पॉइंट वाला हट गया एंड देन आप ये कह सकते हैं कि एनीथिंग आई वांट ओनली दोज डेटा रिकॉर्डेड। लेट्स से आप देख रहे हैं कि जो भी आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है उसमें 2 3 का वैल्यू इंटरचेंज है। मेजर चेंज आप लाइट में LDR से जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप इंटेंसिटी में कब ऑब्जर्व करते हैं? लेट्स से जब 5 पॉइंट के ऊपर जाता है वो डेटा में चेंज आता है, ठीक है? तो आप क्या ऐड करेंगे? आप एक ये चेंज ला सकते हैं कि यू कैन जस्ट ऐड अ फिल्टर जहां पे आप ये करें कि जो भी डेटा रिकॉर्ड हो वो डेटा 5 के जो इंटीजर रिकॉर्ड हो रहा है वो 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। सो आपने वहां एक फिल्टर ऐड कर दिया, तो जो अल्टीमेट एक्सेल फाइल में जो आप जब लास्ट में सारा डेटा रिकॉर्ड करने के बाद जब आप देखेंगे, लेट्स से आपने पूरे दिन का डेटा रिकॉर्ड किया, तो फिर आपको सिर्फ 5 के मल्टीपल दिखेंगे। सो यहां पे आपको 10,000 वैल्यूज अब चेक नहीं करनी पड़ेंगी। एक तो आपने फिल्टर कर दिए जो पॉइंट्स वाले वैल्यू थे, एक आपने फिल्टर कर दिए जो नॉर्मल 5 के ऊपर। सो अब जब आपके पास डेटा आया है तो वो 10,000 पॉइंट्स के बजाय आपको 50 पॉइंट आए एंड 50 पॉइंट में आप उसको टाइम स्टैम्प दे सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये इस टाइम पे जो लाइट इंटेंसिटी है वो इस तरीके से चेंज हुई पूरे दिन में। सो अब इस प्रोसेस को एक मैनेजमेंट एंगल से देखते हैं। ये जो सिंपल सा प्रोसेस है एज ए इंजीनियर आपने बना दिया। अब एक मैनेज प्रोसेस से क्या है कि एक मैनेजर, कल चाहे आप किसी मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हो या आप खुद मैनेजर बने किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो व्हाट यू विल सी इज कि आप इस प्रोसेस को किस तरीके से देखेंगे। आप अपनी टीम को कमांड करेंगे कि हमें डेटा लाइट का कलेक्ट करना है। योर इंजीनियरिंग टीम विल बी गिविंग यू फीडबैक कि अच्छा सर हम इसके लिए ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। LDR के लिए लेट्स से हमको ₹1 का LDR आता है, तो जितने हमें पॉइंट्स चाहिए हम उतने LDR ले लेंगे। एंड हमें अगर इंडस्ट्रियल NDR चाहिए तो अगर हम बल्क में मंगाते हैं, सो जो सेंसर जो LDR आएगा इंडस्ट्रियल ग्रेड का, वो लेट्स से बल्क में मंगाते हैं तो ₹5 का एक आएगा। तो हम जिस हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट है हम ये कर सकते हैं। एंड अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो हम आर्डिनो मंगा सकते हैं जो कि अराउंड आर्डिनो उनो 300 से ₹400 का आएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें सिंपली डिप्लॉयमेंट लेवल का करना है तो हम एक आर्डिनो मंगा लेते हैं जिसको हम टेस्ट कर लेंगे एंड देन फिर हम एटमेगा टीनी मंगा लेते हैं, राइट? उसमें सिंपली हम बस अटैच कर देंगे एंड एक पावर सोर्स दे देंगे, काम हो जाएगा। हाँ, सो यू कैन डू, सो सी ये आई एम
टेलिंग यू कि ये मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से ये होगा. सो आप मैनेजर को ये सर्व करेंगे तो मैनेजर बोलेगा ओके, तो वो बजट एलोकेट करेगा आपको. बजट एलोकेट करने के बाद व्हाट हिल से कि अच्छा ठीक है, लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट. जो भी R&D आप कर रहे हैं उसके बाद व्हेन यू मेक दैट थिंग, फिर वो 1000 डेटा स्टोर कर रहा होगा, आप फिर वो मैनेजर को दिखाएंगे. मैनेजर बोलेगा नहीं नहीं यार इतने क्या करेंगे, हमको एक जनरल अप्रोक्सीमेशन चाहिए. सो व्हाट यू विल डू इज यू स्टार्ट एडिंग फिल्टर्स एज एन इंजीनियर, एंड देन आप एज एन इंजीनियर जब आपने उसमें फिल्टर्स ऐड कर दिए तो व्हाट विल हैपन इज कि व्हेन यू अल्टीमेटली द होल टीम विल सिट एंड व्हेन दे सी दैट कि ओके ये हमारा दिन भर के लाइट इंटेंसिटी का डेटा है, देन दे विल से कि ओके सो जो वेदर रिपोर्ट्स हैं अब क्या करो, अब हमें प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है. अब प्रिडिक्शन मॉडल कैसे बनाएंगे? लेट्स से वो कह सकते हैं कि आपने दिन भर का लाइट इंटेंसिटी का डेटा देख लिया, अब क्या करना है, आप वेदर पैटर्न से चेक करो कि क्लाउड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है आने की. अगर दिन ऐसा है जैसे आज अगर क्लाउड्स है ही नहीं तो हमारा दिन भर का लाइट इंटेंसिटी ये आया. बट लेट्स से अगर हमारे कल वो प्रोबेबिलिटी ऐड करो पैरेलली कि आने वाले महीने में कितना क्लाउडी रहेगा, एंड उसके बेसिस पे एक डेटा हमको चाहिए जो कि अप्रोक्सीमेट दिन भर का लाइट इंटेंसिटी दे. मे बी इसका एप्लीकेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि स्ट्रीट लाइट्स के सुबह जब ऑन हो जाते हैं और रात को शाम को दोबारा, सुबह जब ऑफ हो जाते हैं रात को दोबारा ऑन हो जाते हैं, तो वो कब हम कितनी देर पे ऑन करें, समथिंग लाइक दैट. और मे बी लेट्स से कि आपके होम एक स्मार्टर होम अप्लायंस में आपको यूज करना है. सो ये एक सिंपल LDR को यूज करने के लिए यू सी एवरीथिंग इज एट द एंड यूजर का ₹1 बचाना है आपको, कि जो ₹5 या ₹7 यूनिट कॉस्ट आ रहा है, तो दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि अच्छा ठीक है हमको ये बताना है ऑन द वे वीकली बेसिस या मंथली बेसिस. सो ये प्रोसेस यूज होता है आजकल के टाइम में इंडस्ट्रियल स्मार्टर इंडस्ट्रियल सिस्टम्स बनाने के लिए, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड 4.0. तो ये चीजें हम ध्यान में रख रहे हैं, तो इनके डिजाइन प्रिंसिपल्स में ये जो 6 चीजें आपके सामने लिखी हुई आ रही हैं, इनका मेजर इंपॉर्टेंस है. चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे वो डिसेंट्रलाइजेशन हो. डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिकली ऑब्वियसली आपने ब्लॉकचेन और इसके बारे में बज वर्ड्स ये सारे सुने ही होंगे, मगर बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन लेट्स से अगर हम इस LDR सेंसर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो यू कुड जस्ट से दैट कि मल्टीपल सोर्सेस से आना चाहिए. तो लेट्स से कि आप जब एक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, आपकी कंपनी में ये बात हुआ, तो क्योंकि आपको ये 4.0 के 6 डिजाइन प्रिंसिपल्स पता है, तो एज एन इंजीनियर आप ये रिकमेंड कर सकते हैं अपनी टीम को कि मच बेटर एफिशिएंट प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. तो आप कहेंगे कि लेट्स नॉट जस्ट कलेक्ट डेटा फ्रॉम वन LDR एंड वन Arduino. Let's make at least 5, 6 or 10, place them at different locations, and then collect करके फिर हम उसका एवरेज निकाल के दिन भर का लाइट इंटेंसिटी प्लॉट करेंगे, समथिंग लाइक दैट. सो तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका डेटा मच मोर सेंसिटिव होगा. लेट्स से जहां पे आपने किया है वहां पे कहीं साइड में पेड़ है या समथिंग, कोई शेड है, एंड जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है वो शेड आपके सेंसर पे पड़ने लगता है, तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट सम चेंज. या फिर लेट्स से ये भी छोड़ दीजिए, लेट्स से आपने प्रॉपर्ली प्लेस किया है मगर कहीं हवा चलती है या समथिंग, धूल उड़ती है और आपका सेंसर थोड़ा सा उसके ऊपर कोई लेयर आ जाता है, या फिर लेट्स से कुछ बग ड्यू टू एनी काइंड ऑफ कोडिंग एरर या एनीथिंग, आपने प्रॉपर्ली कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा है एंड उसमें कुछ इश्यू आता है. तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. सो जब आप ये एक्सपेरिमेंट रन करेंगे तो क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होगा तो इट विल बी मच मोर एफिशिएंट. रियल टाइम कैपेबिलिटीज, सर्विस, ऑब्वियसली सर्विस ओरिएंटेशन. सो जब आप ये बेसिकली है कि जब आप डिप्लॉय कर रहे हैं तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए. मॉड्यूलैरिटी का बेसिकली ये मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल अप्रोच. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपका जब बल्ब खराब हो जाता है तो यू कैन इजीली जस्ट रिप्लेस इट, आपको पूरा सॉकेट नहीं चेंज करना पड़ता है, राइट. लेट्स से आपका पीसी है, पीसी इज मच मोर क्लासिक एग्जांपल, पीसी वर्सेस लैपटॉप. आपका जो पीसी है वो मच मोर मॉड्यूलर है कंपेयर टू एन लैपटॉप. व्हाई? इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलैरिटी यू कैन जस्ट से दैट कि ओके अभी मेरे पास इतना बजट है,
I can buy a PC of let's say 50,000 rupees, and 50,000 में मेरे पास एक let's say 16 GB RAM आ जाएगा. I can buy a processor of let's say i7, या मैं कुछ AMD में जा रहा हूँ या whatever. But आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि पीसी ज्यादा मॉड्यूलर है. मॉड्यूलर का मीनिंग क्या है कि फ्लेक्सिबल है. सो आफ्टर 1 ईयर लेट्स से आप थोड़ा पॉकेट मनी सेव करते हैं और आपने 16 GB का रैम लिया है, एंड देन आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं 32 GB में, यू कैन इजिली डू दैट, राइट. मगर लैपटॉप में आपको बहुत ही मे बी एक स्लॉट एक्स्ट्रा दिया होगा, उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रैम कंपैटिबल है आपके मदरबोर्ड के साथ, नहीं. सो ये सारी चीजें. सो आज के डेट में बिकॉज कस्टमर नीड्स डे बाय डे ग्रो हो ही रही हैं, एंड यू डोंट वांट कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करें जो कि सिर्फ इस वजह से कंपटीशन में हार जाए क्योंकि सामने वाले का जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है वो मच मोर मॉड्यूलर है, मच मोर कस्टमर एफिशिएंट है. सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन कंसिडरेशन. ओके, सो सिमिलरली जैसे मैंने कहा, अगर हम ये बेसिक हम बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हैं, बिग डेटा हो गया, ऑटोनॉमस रोबोट्स हो गया, सिमुलेशंस हो गए. सो ये सारी चीजें, एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जार्गन अराउंड इट, बट द थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे ऑटोमेशन and a smarter way are much more efficient. Everybody is looking for a smarter and efficient way. चाहे वो आप एक सिंपल LDR से सॉल्व कर दें, या आप उसमें करोड़ों रुपए लगा के पूरा AI इस्टेब्लिश करें जो सन के अराउंड घूमता हो एक सैटेलाइट में, एंड आपको क्या नाम है डेटा देता हो कि ओके सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं तो हमारे यहाँ जो अर्थ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे इंटेंसिटी क्या होगा. सो देयर आर मच मोर different ways based on your industry, based on your circumstance, and based on what kind of budget and project you have. But overall, everybody is looking to be much more smarter, much more efficient than their competition. Simple. So impact अगर आप देख लेंगे इसका, तो I would say तो हर इंडस्ट्री में है. If you can comment कि कौन से इंडस्ट्री में इसका impact मिनिमम हो सकता है, let's see that. But I am sure you will find some kind of smarter and efficient way to implement IoT or AI or basically data collection. Let's say आजकल खाना बनाने के लिए लोग YouTube पे डाल रहे हैं, and they are turning by remote, with the help of remote kitchens and all, they are turning cooking into a full-time profession just from cooking in their kitchen, right? So I think one of the biggest channel on YouTube भी एक cooking channel है अपने इंडिया से, जो शायद टाटा स्काई एंड इस पे रेगुलरली दे पब्लिश इट, एंड दे हैव अ करोड़ डील विथ ऑल दीज बिग ब्रांड्स. सो यू हैव टू लुक इनटू इट, एंड आज के डेट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ऑलवेज ट्राई टू बी, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, हम सब एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में है, प्लस आगे भी हम जाएंगे तो विल टेक दिस बैकग्राउंड विद अस, चाहे हम किसी भी फील्ड को चूज करें, चाहे मैनेजमेंट फील्ड को चूज करें या स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या अपना कहीं जॉब कर रहे हो. If you have an in-depth knowledge how these processes work, it will not only help us to build better systems, much more efficient systems, but to manage and to visualize कि okay, जो हमारा next step होगा या जो आपकी company का next step होगा वो क्या होना चाहिए और कैसे आप better. So it can help you basically make a right career decisions either inside a company or while doing anything else. So अब जब हम, आई होप इंडस्ट्रियल 4.0 के बारे में हमने काफी सारा आपको मैंने समझा दिया है, एंड होप काफी क्लियर हो गया होगा. यू कैन पुट द कमेंट्स इन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इंडस्ट्रियल 4.0. आई हैव डिवाइडेड माय टाइम हाफ एंड हाफ. सो इंडस्ट्रियल 4.0 हो गया, सो दैट वाज मच मोर फोकस्ड ऑन द टेक्निकल पार्ट. आई वुड से नाउ आई विल go on growth hacking. So growth hacking is basically a much more data driven management process. कि let's say आपने सब कुछ डेवलप कर लिया and all, ये जो हम पहले देख रहे थे वो इंडस्ट्रियल 4.0, that was a perspective of an engineer. Now let's say कि या तो आप अपना स्टार्टअप रन कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, तो आप किस तरीके से वो प्रोसेस को रन करेंगे. So that is, these processes are in industry. आप उसको डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट कह सकते हैं, आप उसको या डिफरेंट चीज कह सकते हैं, मगर ग्रोथ हैकिंग इज द मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट यूज्ड वर्ड दीज डेज. सो ग्रोथ हैकिंग एग्जैक्टली क्या है?
सो लेट्स से पहले जो मैनेजर्स थे वो डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे हैव लर्नड इन देयर मैनेजमेंट स्कूल्स, व्हाट दे हैव, या फिर मैनेजर्स जो मार्केट में जब उनका एक्सपीरियंस आता था उसके बेसिस पे दे यूज्ड टू मेक डिसीजंस. बट आज के डेट में एवरीबडी इज लुकिंग इनटू डेटा, एंड आप देखेंगे कि जो बिगेस्ट कंपनीज हैं जो डेटा का यूज कर रही हैं वो रादर मैनेजमेंट कंपनीज हैं टू मेक मच मोर बेटर डिसीजंस देन टेक्निकल कंपनीज. क्योंकि टेक्निकल कंपनीज में क्या है कि इट्स वेरी, बिकॉज एक प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम टू चेंज स्टफ. सो लेट्स से अगर आपकी कंपनी वर्क कर रही है किसी एक प्रोटोकॉल पे, सो उसका नेक्स्ट वर्जन लाने में इट विल टेक सम टाइम, राइट. लेट्स से आपके जैसे लैब्स में, मान लो हमारे लैब में प्रोटियस का एक वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो जब हम लेट्स से हमारे लैब में जब नेक्स्ट अगर नया वर्जन लॉन्च हो गया है तो लैब्स में प्रोटियस का नेक्स्ट वर्जन आने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा क्योंकि वो एक प्रोसेस है, राइट. मगर और इवन प्रोटियस अगर हम प्रोटियस के हिसाब से देखें तो प्रोटियस को डेवलप करने में भी उतना टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम. मगर मैनेजमेंट में क्या है कि दे हैव टू टेक डिसीजंस वेरी क्विक, वेरी फास्ट, बिकॉज कंपटीशन उतनी तेजी से उनसे compete कर रहा है. सो व्हाट दे डू इज, कहाँ जाएंगे फिर वो? अब ऐसा क्या टूल है उनके पास आज के टाइम में जो पहले नहीं था? सिंपल, डेटा. एंड कैसे डेटा यूज करेंगे, लेट्स गो इनटू दैट. सो डेटा इज बेसिक, जो ग्रोथ हैकिंग प्रोसेस है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट ड्रिवन प्रोसेस है. व्हाई वुड आई से कि एक्सपेरिमेंट ड्रिवन प्रोसेस है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डेटा आपको सिर्फ हाफ या फिर लेट्स से इनकम्प्लीट स्टोरी टेल करता है. एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि स्टिल वी आर नॉट इन द एज ऑफ एआई जहां पे कंप्लीटली टर्मिनेटर लाइक चीजें हो रही हैं एंड एआई सब कुछ रन कर रहा है and making decisions की what is right, what is wrong, because obviously we don't have that capability yet. Maybe हम industry 5.0 में वो capability देखेंगे जहाँ पे completely interconnected है world और हर जगह से data आ रहा है. मगर आज के टाइम में क्या है कि yes, data आप एक जगह से collect कर सकते हैं मगर it's still in the development stage. That's why it has such potential. कि हम सभी अपने, चाहे हम प्रोफेशनल्स हों, चाहे हम एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे हम एकेडमिशियंस हों, वी कैन लेवरेज इट टू बूस्ट आवर करियर्स एंड बूस्ट आवर प्रोडक्ट्स और एनी काइंड ऑफ सर्विसेज वी आर इन एट द नेक्स्ट लेवल. सो इट्स 50-50 थिंग काइंड ऑफ, लेट्स से. एंड जो भी डेटा आपके पास आता है आज के डेट में आपको उसको स्टडी करके एक जो मैनेजमेंट डिसीजन है वो आप कैसे लेंगे. सो बेसिकली इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपली ग्रोथ हैकिंग प्रोसेस. हाउ वी डू दैट? सो लेट्स से यहां पे जिस तरीके से लिखा है पायलट फनल, एक तरह का फनल आता है जो बेसिकली मल्टीपल मैनेजमेंट टूल्स की तरह होता है. बस डिफरेंस यहाँ ये है कि इट लेवरेजेस एक्सपेरिमेंटेशन मच मोर देन अदर प्रोसेसेस. सो हाउ डू वी डू दैट? लेट्स से आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस में हैं, तो अब आपको डिसीजन देना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूजर्स को अंडरस्टैंड करेंगे. यूजर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद यूल से कि अच्छा ठीक है यार, वही हमारा बेस एग्जांपल लेते हैं कि हमारा लाइट वाला सीन है कि हमें एलडीआर यूज करना है, हमको इस तरीके का है. तो आप सबसे पहले समझेंगे कि मार्केट में जो यूजर है जिसको आप प्रोडक्ट ये बेचने जा रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली है क्या. यू गैदर आइडियाज अराउंड इट, दैट इज स्टेप 3, जो भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे इंटरनली बैठ के. एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मल्टीपल आइडियाज विल हैव, सारे फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स अपना एक आइडिया लेके आएंगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, दे विल बी एन आइडिया फ्रॉम एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अच्छा ठीक है कि एज पर द कस्टमर हमारे पास ये बजट है, ये कॉस्ट है, ये ऐसा है. सम आइडिया विल कम फ्रॉम अ डिफरेंट डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल. And then after doing that, what you have to do is you have to rank those ideas in terms of, okay, so most feasible, maybe कोई बहुत अच्छा आइडिया है, कोई कह रहा है कि भाई हम AI लगाएंगे एंड ये करेंगे वो करेंगे, मगर आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि ऑब्वियसली उसका बजट नहीं. सो अकॉर्डिंग टू ऑल पैरामीटर्स, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशंस and your different parameters in terms of the company and in terms of market and your situation, you'll rank those ideas. And once you rank those ideas, you'll see कि अच्छा ठीक है,
कि अब ये रैंक हो गए हैं, अब इनमें हमको टेस्ट रन करने हैं. सो हाउ डू वी रन टेस्ट ओवर इट? सो आप फिर उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स प्लान करेंगे. फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कुड से इज कि लेट्स से आपका ये हो गया कि अच्छा ठीक है, हम हमारे आइडियाज के हिसाब से ये है, तो लेट व्हाई नॉट वी रन अ कैंपेन ऑनलाइन जिसमें हम पोल रन करें और देखें कि किस एज ग्रुप के लोग इस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं, राइट? सो ये किस एज ग्रुप के लोग मेनली इस प्रोडक्ट को ध्यान देंगे. तो आप एक पोल रन करेंगे, जैसे फेसबुक पे आपने लाइव ज्वाइन किया. सिमिलरली व्हाट यू विल डू इज यू विल गो ऑन फेसबुक, और वहां पे आपको एक पोल दिखेगा. आप अगर जैसे आपकी कंपनी है तो आप अपने फेसबुक पेज पे एक पोल रन करेंगे, उसको बूस्ट करेंगे फेसबुक को कुछ पैसे देके, एंड वो ओवरऑल आप जैसे मान लीजिए वडोदरा में सेल करना चाहते हैं तो वडोदरा में सबको वो पोल दिखाएगा. उसके बाद आप उस पोल का डेटा ऑब्जर्व करेंगे, और मे बी आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि स्टूडेंट्स नहीं खरीदेंगे इसको क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको आज के टाइम में रिक्वायरमेंट नहीं है. 40 से ऊपर के लोग ये नहीं खरीदेंगे क्योंकि मे बी वो लेटर ऑन कस्टमर बन सकते हैं जब मार्केट में प्रोडक्ट एस्टैब्लिश हो जाए. मगर जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लोग जो कौन से होंगे, तो आप ये देखेंगे कि मे बी आप ये डेटा आपको रिवील करेगा. लेट्स अज्यूम कि जो इंजीनियर्स, जो टेक सैवी या फिर जो यंग लोग हैं जिन्होंने अभी अभी जॉब पकड़ी है एंड दे आर वरिंग अबाउट बिल्स कि यार बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है यार, ये वो लोग आपके फर्स्ट टारगेट कस्टमर बन सकते हैं, जो भी आपने ऑनलाइन पोल या फिर जो भी आपने एक्सपेरिमेंट रन किया. अब उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, नॉट ओनली आपका प्रोडक्ट मगर उसका प्राइसिंग, उसका पैकेजिंग, उसका मार्केटिंग और उसका पूरा कस्टमर चेन डिजाइन करेंगे. कि कस्टमर बेसिकली कस्टमर जर्नी कहते हैं इसको मार्केटिंग में, कि जब कस्टमर आपको पहली बार आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनेगा, वहां से लेके कस्टमर कैसे स्लोली 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 फर्स्ट स्टेज आपके बारे में सुनेगा, देन सेकंड स्टेज ओके सुना उसने, जैसे कोई नया ब्रांड आता है तो आप उसके बारे में टीवी पे एड्स में सुनते हैं, आप मे बी फेसबुक पे उसका पोस्ट देखते हैं. आप देखेंगे कि कोई नया ब्रांड आया है तो लेट्स से अगर मुझे वडोदरा मार्केट करना है तो ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं वडोदरा में, लाइक आर वडोदरा एंड ये सब, जहाँ पे आप सब मोस्ट प्रोबेबली हम सब सब्सक्राइब करते हैं ऐसे पेजेस को. तो आप वहां पे जाएंगे एंड वहां पे आर वडोदरा से या फिर बाकी ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जिनको आप कांटेक्ट करेंगे एंड आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है पेड प्रमोशन कर दीजिए हमारा, या समथिंग लाइक दैट. तो फिर फर्स्ट थिंग दैट, एंड देन उसके बाद वो कैसे आप इंटरैक्ट करेंगे. मे बी आप ये कह सकते हैं कि हम फ्री सैंपल्स दे रहे हैं, या फिर आप आके हमारे से इंटरैक्ट करिए एंड हम आपको ट्रायल देंगे, 1 वीक ट्रायल दे रहे हैं फ्री में, हम इंस्टॉल करके जाएंगे 1 वीक के लिए एंड आपको पेमेंट 1 वीक के बाद करना है. अलग अलग चीजें. तो आप एक पूरा कस्टमर जर्नी प्लान करेंगे कि वो आपके ब्रांड को पहली बार देखेगा कब से लेके आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कब, एंड देन पैरेलली खरीदने के बाद इसके बाद भी एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं कि रेफरल सिस्टम या फिर रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम, की ना कि सिर्फ वो किसी और इतना उसको पसंद आए कि वो दोबारा अगर उसको जरूरत पड़ रही है तो वो आपसे दोबारा खरीदे, बल्कि वो आपको रेफर भी करे एंड मे बी उसको कुछ रिवॉर्ड मिले, समथिंग लाइक दैट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट्स व्हाई हमने इसको जोड़ा हुआ है कि ग्रोथ हैकिंग इंडस्ट्री 4.0, क्योंकि चाहे आप एक मैनेजमेंट स्ट्रीम से एक प्रोडक्ट या एक सर्विस या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, चाहे आप उसको एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव दिस बेसलाइन आइडिया कि वो पुराने टाइम गए जहां पे सिंपली सिर्फ एक्सपीरियंस और अजम्पशंस के बेसिस पे आप कर सकते हैं. ऑब्वियसली वी नीड दैट, बट दो मैनेजर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस और क्योंकि आपके बगल कल मान लीजिए आप एक किसी भी कंपनी में जाते हैं एनी पोजीशन, तो आपके साथ कोई और 4 इंजीनियर्स और उन्होंने भी ज्वाइन किया होगा, या मे बी जैसे कोई बड़ी कंपनी है TCS एंड ऑल, लाइक तो हजारों लोगों ने एक साथ उस साल ज्वाइन किया होगा, राइट? एंड कैसे आप स्टैंड आउट करेंगे एक टीम से, आप एक टीम लीडर कैसे बनेंगे? दैट जर्नी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब अहेड, वो आपको इस जर्नी, ये जो बेसलाइन आइडिया है, अगर आप कंटिन्यूअसली इस तरीके से सोच रहे हैं तो दैट विल हेल्प यू
go into right way कि अच्छा ठीक है, if I look at my code in a particular way कि how will it will impact the user and how will impact the internal team, the overall deployment. So obviously your managers and the people above you will see he has a better approach to our product and service rather than compared to other people. And this kind of approach, people not only, as I'm saying again and again, not only in engineering requirement, but also management requirement भी है ये बेसिक. एंड मार्केट में लोग खोज रहे हैं, चाहे आप अपना स्टार्टअप रन कर रहे हो, चाहे वट एवर. दिस इज द डिमांड. दैट्स वाई जो आप बज वर्ड सुनते हैं, डेटा डेटा डेटा, AI, IoT एंड ऑल, ये ऑब्वियसली बज वर्ड्स हैं. हैशटैग इंस्टाग्राम पे एंड लगाने में काम आता है, थोड़ा सा पोस्ट को 2 लाइक ज्यादा मिलते हैं. मगर एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक सीरियस प्रोफेशन में हैं जहां पे आपको एक प्रोडक्ट डिलीवर करना है जिससे आपका एक्चुअल रेवेन्यू फ्लो हो रहा है, यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ बेस लाइन फॉर ऑल योर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो. सो ओवरऑल ये है हमारा. एंड इसमें आई थिंक वी आर 40 minutes इन. सो आई हैव प्लान्ड, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पैरेलली get me you can parallelly put in the live chat on Facebook, and I can, or Ravi sir can let me know if he receives any questions. I have something else for you, because obviously हम जो मेरा स्टार्टअप है वो बेसिकली फोकस करता है एग्री टेक सेक्टर पे. हमारा पूरा रिसर्च डिवीजन एग्री टेक सेक्टर में है, एंड वी आर वर्किंग विद गुजरात गवर्नमेंट टू हेल्प दिस. सो वी हैव, क्या है कि बिकॉज मैं भी कल वहीं पे था जहां पे आप हैं, एंड थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है अगर कई लोगों के लिए कि टू अंडरस्टैंड दिस कि एग्जैक्टली कि यार ये तो सिर्फ लेक्चर ही है. तो आई हैव अ स्मॉल डेमो फॉर इट, जितना भी हम ऑनलाइन कर सकते थे. We have activated a link in our agritech section on our website, that is darkfractal.com, Air में. So if you go into Air, you'll see this. If you go into Air, you'll see this. You'll see this section here, जहां पे हमने 2 पोस्ट को एक्टिवेट किया हुआ है आपके लिए. यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एयर सेंसर्स है एंड वेदर स्टेशन. सो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि IoT का डिफरेंट इंडस्ट्री में एक क्लासिक एग्जांपल है कि एग्रीकल्चर में देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर इनोवेशंस लाइक दिस. क्योंकि अगर आप देखेंगे, चाहे डीमोनेटाइजेशन हुआ, चाहे ये अभी कोविड टाइम आया, अगर आप एक्चुअल जाके डेटा स्टडी करेंगे, ओनली एग्रीकल्चर इज अ सेक्टर जहां पे स्टेबल है इकोनॉमी, रादर देन हर सेक्टर हाईली अफेक्टेड है. जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर का बाकी इंडस्ट्रीज की तरह ऑब्वियसली पॉजिटिव तो नहीं हुआ है, मगर बाकी इंडस्ट्रीज की तरह नेगेटिव भी नहीं हुआ है. So we have a quick experiment for you. If you want to read about it, we have put a atmosphere sensor over here. But for क्योंकि हम सब EC से हैं, तो for an EC flavor, we have added a quick demo for you guys over here. जहाँ पे आप जाके, for example, let's say weather station build कर रहे हैं. अभी तक हम बात कर रहे थे अपने baseline जहाँ पे जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे उसके लिए. तो लेट्स बिल्ड अ वेदर स्टेशन. लेट्स से कि योर कंपनी नीड्स, लेट्स से समडे वी वर्क टुगेदर एंड इन आवर कंपनी लेट्स से हमें एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि हमें एक वेदर स्टेशन बिल्ड करना है. तो अगर हमें प्रोटोटाइप बिल्ड करना होगा उसका, तो हाउ डू वी बिल्ड दैट? वो प्रोटोटाइप हम बिल्ड करेंगे, तो उसका हमने एक छोटा सा क्विक एग्जाम्पल दिया हुआ है. सो लेट्स से वेदर स्टेशन DIY प्रोजेक्ट. मटेरियल्स हमें क्या यूज होंगे, तो हमने ये मटेरियल्स जो भी ग्रोथ हैकिंग प्रोसेस के थ्रू है, हमने ये मटेरियल सिलेक्ट किए कि भाई अब पहले तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इंटरनली कि क्या क्या हमारा होगा एंड क्या क्या हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होगा. सो लेट्स सिलेक्ट दीज. तो अभी हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हमने एक आर्डिनो सिलेक्ट कर लिया कि हम आर्डिनो ऊनो यूज करेंगे. उसमें हम यूज करेंगे, लेट्स से अब हम प्लान करते हैं कि कौन कौन से सेंसर्स यूज करेंगे. तो DHT 11 यूज कर रहे हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के लिए. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव यूज्ड दिस.
बैरोमीटर शायद नहीं यूज किया होगा आप लोगों ने, मगर बैरोमीटर BMP 280 वन ऑफ द, मतलब बहुत सिंपली यूज्ड एंड मार्केट में बहुत चीपली आई थिंक 250 रुपए कुछ का है, तो इजीली मिल जाएगा. लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स, LDR, सॉइल एंड ह्यूमिडिटी सेंसर लेट्स से हम यूज कर रहे हैं. 4 चैनल रिले भी यूज कर रहे हैं कि मे बी लेट्स से हमको कोई मोटर रन करना हो या वट एवर. एंड 2 किलो ओम का रजिस्टर, पुल अप रजिस्टर एज हम यूज कर रहे हैं. ब्रेड बोर्ड हमें चाहिए होगा एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, जंपर एंड कनेक्टिविटी वायर चाहिए होगा, 9 वोल्ट बैटरी चाहिए होगा. सॉरी. सो यस, सो एक बार हमने पार्ट सिलेक्ट कर लिए, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपने इंजीनियरिंग टीम को बोलेंगे कि ठीक है भाई, प्रोटियस में या कहीं पे कहीं सिमुलेशन टूल में जाओ, बनाओ पहले, ठीक है, वहां पे रन करो इसको बिफोर ऑर्डरिंग पार्ट्स एंड ऑल. तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टीम है वो इस तरीके का कोई एक सर्किट डायग्राम डेवलप करेगी एंड देन दे विल गो इनटू, इवन ये आई थिंक ये मेथोडोलॉजी आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं. एंड लेट्स से आप फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड उसमें आप ये मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम मैं देखता हूँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को जब अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें जो थीसिस लिखना होता है, दे हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम कि भाई ठीक है हमें पता है कि ये है वो है, मगर हम इसके अंदर क्या लिखे, एंड फिर वो लिमिटेड पेजेस का ही हो जाता है थीसिस. तो एक प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट आपने क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या रीजन था, व्हाई यू ओनली सिलेक्टेड DHT11, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स, या फिर आपने 4 चैनल रिले ही क्यों लिया, आपको क्यों लगता है कि 4 चैनल रिले, आप 8 चैनल रिले भी अवेलेबल है. सी दिस इज, इफ पीपल हु हैवंट सीन, मतलब मोस्ट ने देखा ही होगा, दिस इज 4 चैनल रिले. सो 8 चैनल रिले भी अवेलेबल है. आप डेमो टेस्ट कर रहे हो तो आप व्हाई नॉट यू गाइज ओनली यूज सिंगल रिले. तो सिंपल, तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्वियसली पहले आपको इंटरनली डिस्कस करने चाहिए. आई एम वेरी श्योर, एंड प्लस मैंने भी अपने बैचेस में देखा है कि जितने भी टीम्स इस तरह के मेथोडोलॉजी एंड इंटरनली टीम्स के साथ अपने अपने असाइन टीचर के साथ ये डिस्कस करते हैं, जब वो बेसिकली वाइवा में बैठते हैं, दे हैव नो प्रॉब्लम. वाइवा फिर वो एक एक्स्ट्रा वाइवा ही हो जाता है उनके लिए. वो बस जाते हैं, दे एक्सप्लेन देयर प्रोडक्ट, द टीचर ओवर देयर, द प्रोफेसर ओवर देयर सीज दैट कि द स्टूडेंट हैव परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट ओनली टेक्निकली, मगर क्यों यूज किया, कैसे यूज करेंगे, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं. एंड इट विल बेसिकली लाइक मक्खन, सिंपली यू विल गेट A's एंड ऑल. सो लेट्स से ये हो गया, तो अब फिर क्या करेंगे, फिर मे बी मैनेजमेंट बोलेगा आपको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए. सो व्हाट यू कैन गो थ्रू इज, यू कैन गो थ्रू कि भाई ठीक है हम DHT11 यूज करेंगे, उसका ये ग्राउंड पॉइंट्स हैं, विल यूज दीज. इसमें एक अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक 1 किलो ओम का हमने पुल अप रजिस्टर लगाया हुआ है. तो लेट्स से अगर आप यही मान लीजिए ये आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड इसमें आपने ये सब लिखा हुआ है, तो आपने ऑनलाइन देख के प्रोजेक्ट तो छाप दिया, मगर उसके बाद जब आपसे अगर आप इस तरीके से अगर आपने डिस्कस किया हुआ है तो आप ऑब्वियसली पूछेंगे कि अच्छा ठीक है ये DHT11 यहाँ पे लगा हुआ है, राइट, मगर यहाँ 2 रजिस्टर क्यों लगे हुए, सीधा क्यों नहीं कनेक्ट किया हमने इसको, ठीक है, और सीधा और क्या रीजन है इसको लगाने का. ऑब्वियसली वहां पे सिंपली लिखा होगा कि पुल अप रजिस्टर है, ठीक है, और मगर फिर आप वाइवा में जाएंगे और वो जो एग्जामिनर होगा, जो इन्विजिलेटर होगा, एंड दे विल आस्क यू कि अच्छा ठीक है पुल अप रजिस्टर बता दो भाई, पुल अप रजिस्टर क्या होता है, राइट. एंड ऑब्वियसली अगर आपने इस तरीके प्रोसेस और चाहे अपने प्रोजेक्ट बनाते टाइम इतने बारीकी से अपने प्रोजेक्ट को एनालाइज किया है, तो ये बात इसकी नहीं है कि भाई मुझे एक बेटर इंजीनियर या फिर मैंने जिंदगी में इलेक्ट्रॉनिक्स उठाया है या नहीं उठाया है, इसकी बात, ये बात है ही नहीं. ये बात सिंपल है कि मैंने अपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, चाहे मैंने जिंदगी में पहली बार आर्डिनो देखा हो, मगर इफ आई गो थ्रू दिस मेथोडोलॉजी, मैं ये मेथोडोलॉजी आपको हेल्प करता है राइट क्वेश्चंस पूछने के लिए खुद से, ताकि जब कोई और आपसे पूछे तो यू ऑलरेडी हैव ऑल दोज आंसर्स. तो यू लुक इनटू कि पुल अप रजिस्टर क्या होता है, कि इट इज नीडेड टू मेक श्योर दैट सिग्नल लेवल स्टेज हाई बाय डिफॉल्ट. एंड जब क्योंकि ऑब्वियसली फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं जब आप एक सर्किट यूज कर रहे हैं, तो ऑल दैट, सो यू लुक इनटू दैट.
एंड देन फिर DHT11 हो गया तो फिर आप बाकियों को कैसे कनेक्ट करोगे, आप एक LDR को कैसे कनेक्ट करोगे, आप एक सिंपली सॉइल ह्यूमिडिटी सेंसर को कैसे कनेक्ट करोगे। 4 चैनल रिले है तो 4 चैनल रिले तो ऑब्वियसली आपने कनेक्ट कर दिया, एंड 4 चैनल रिले कनेक्ट करने के बाद ओके तो अब इसमें पावर सप्लाई का सीन है, तो आप कौन से चीजें यूज कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि कितना वोल्टेज आना चाहिए। हर रिले रेटेड होता है एक पर्टिकुलर AC एंड बोथ DC के लिए भी, क्योंकि जो आप इसका जो कंट्रोल सिस्टम है, जो ये आप नीचे की तरफ पिंस देख रहे हैं, ये जो आप पिंस देख रहे हैं यहाँ पे, सो ये बेसिकली आप यूज करेंगे नॉर्मल अपने आर्डिनोस के साथ, एंड इन पिंस में आप कनेक्ट करेंगे। अब आपको इस ये यहाँ पे 3 पिंस हैं, और नॉर्मली आपको जो कनेक्शन आता है वायर का आएगा, तो आप उसमें एक कट लगाएंगे, आप बोलेंगे कौन से पिन में जोड़ूं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मुझे नॉर्मली ओपन रखना है कि नॉर्मली क्लोज रखना है, क्या करना है। तो यू हैव टू लुक इनटू दैट। आपको इस प्रिसीजन से कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कुछ, चाहे आप प्रोफेशनली कर रहे हो मार्केट में, चाहे एज अ मैनेजर, एज एन इंजीनियर, यू हैव टू लुक ऑल दिस विद दिस प्रोफेशनल आई। उसके बाद ये सारा हो जाने के बाद ऑब्वियसली कोड, कि एक बार आर्डिनो में रन करके देखते हैं कि भाई क्या होगा, किस तरीके से। स्पेशली वन रिकमेंडेशन जो कि स्पेशली मैं देखता हूँ कि EC इंजीनियर्स या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में है, एम्बेडेड सिस्टम्स में है, उनके साथ आता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले खाली कोड करते हैं, एंड दे हैव वन बेसिक जॉब टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स एट अ फ्रंट एंड साइड एंड डेवलप, चाहे फ्रंट एंड या बैक एंड, मगर उनका कोडिंग ही है। सो दे हैव मच मोर बेटर कोड written compared to when an electronics engineer, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे कंपाइल होके वो सारा कंपाइलर से जाने के बाद वो मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होना है। मगर लेट्स सी दिस हियर, व्हेन यू आर राइटिंग अ कोड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड कोड लिखा है आपने, एंड प्रॉपरली फॉर एग्जाम्पल आप अपनी टीम के लिए लिख रहे हैं, लेट्स से आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहां से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए अपने आप को रेडी करने के लिए, कि आप उसको प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर में हो, हाँ, प्रॉपरली कमेंटेड हो, ऑल द वैल्यूज व्हाट यू हैव सिलेक्टेड, देयर इज अ, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने देखे डिफाइन टाइम आउट 10 सेकंड्स का लिया, तो वी ऑब्वियसली वी नो कि जब हम इसमें देते हैं तो ये मिली सेकेंड्स में देते हैं, एंड इट्स वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। ये आप भी समझेंगे जब आपका जो इन्विजिलेटर होगा, जब वो देखेंगे तो वो दे विल ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि भाई 10 मिली सेकेंड का है। मगर लेट्स से कि आपके जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं और आपने ऐसा कोड लिखा हुआ है एंड द मैनेजर इज गोइंग थ्रू ऑल दिस, सो इट्स वेरी मच इजियर टू डू दैट। लेट्स से ये छोड़िए, ये तो बहुत छोटे कोड हैं जहां पे प्रोजेक्ट्स में हम बात करते हैं। लेट्स से आप एक बहुत इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ ये कितने लाइन का प्रोजेक्ट है, लेट्स सी, कुछ सेंसर्स को ही कनेक्ट करना है यहाँ पे, एंड इट्स अ 148 लाइन प्रोजेक्ट कोड, सॉरी। सो बट ये 148 लाइन 1000, ये 1,48,000 लाइन बनने में टाइम नहीं लगेगा जैसे ही आप इसको इंडस्ट्री में स्विच करेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे आपको एरर मैनेजमेंट करने पड़ेंगे, कई सारे चेक्स करने पड़ेंगे अपने कंपनी के हिसाब से। वो बोलेंगे नहीं ये लोगो लगाओ, वो लगाओ, ये दिखना चाहिए, वो नहीं दिखना चाहिए, तो ऑल दैट स्टफ। सो अगर आप प्रॉपरली कमेंट करते हैं इसको, तो चाहे वो 40 लाइन का कोड हो या 4 लाख लाइन का कोड हो, इट डजंट मैटर, इट्स मच मोर इजियर फॉर अ कोडर। जैसे आपकी टीम में मान लीजिए आपने कोड किया हुआ है और आपने पास ऑन कर दिया अपने जूनियर को, सो यू कैन सिंपली, इफ योर जूनियर इज सीइंग दैट कोड, वो फिर बार बार आके आपको बग नहीं करेगा, सर ये कहाँ से क्या हो रहा है, सर ये फंक्शन यहाँ क्यों यूज किया है एंड ऑल। You could just simply go into, if you have commented your code properly, written your code properly, तो क्या होगा, जो आपका जो एज अ टीम जो टाइम है वो क्वेश्चंस पूछने के बजाय मच मोर एफिशिएंटली वर्क करने में जाएगा। सो इफ इट इज प्रॉपरली कोडेड, इट विल बी मच मोर इजियर फॉर एवरीबडी एल्स टू सी दैट। सो ये एक डेमो है, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, जस्ट गो थ्रू दिस thing and you could make a weather station or something for a hobby or anything, so if you like, क्योंकि obviously हमने ये सारा कोड किया, तो अब we thought कि कुछ error आएगा या something, तो हमने यहाँ पे एक डाउनलोड लिंक भी दे दिया है, so you could just download this over here. obviously schematics and everything तो ऊपर है, मगर let's say DHT11 है तो वहाँ पे आपको एक जो लाइब्रेरी फंक्शन होगा एंड वो आपने इंस्टॉल किया हो या नहीं, फॉर एग्जाम्पल आर्डिनो में ये हेडर फाइल,
So maybe, so we have added, हमने एक zip file वहाँ पे दिया, तो you can just download that from here. And if you are building and trying out this project, so and वहाँ पे आपको सारी libraries मिलेंगी, और Arduino code I think, yeah, हमने check किया है, कोई without any error or compiled है. So if you like that, and do share your feedback and everything with us. अब वापस आते हैं अपने topic पे. So this was basically my thing, growth hacking data, growth hacking industry 4.0. अगर आपके कोई questions हैं, so I'm here for another few minutes. Please let me know. If you guys let's say कि अभी आप नहीं पूछ पा रहे हैं, या फिर जब आप प्रोजेक्ट ट्राई करते हैं तो उसमें आपके कोई क्वेश्चंस हैं या एनीथिंग, you could just contact, if you want to contact me anytime, you could just go to darkfractal.com, or just simply search data.df on any social media platform. We are highly active on Instagram, but other platform पे भी हम parallelly active हैं, Facebook and all पे. Any questions? So let me know. Thank you. Ravi sir, please. Yeah, Mr. Aditya. So if students have any questions, you can type in Facebook chat box, or you can send me a message on my number is, or email ID ravi.parik@paroluniversity.ac.in. Yes. And you can also send the message to the directly to Mr. Aditya. He has already shared his information. So that is BF. Yeah. So thank you, Mr. Aditya, for sharing the current scenario Thank you sir. of Thank you. industry. It was a pleasure. And yeah, and it's good for students to understanding the current, actually what is going on in industry area. So student definitely will contact you if you have any confusion. So Thank you. again, on behalf of electronics and communication, I am thank you to you. Thank you sir. So we are stop over here. Okay Thank sir. you, students, for attending a session. Thank you very much. Thank you sir. Have a nice day everyone. Bye bye. 1, 0, 1, 1. So what answer we will get? We will just see. Jitin sir. So now to make it 3 students, what you can do? Brijesh sir, Jitin sir. We will add a 0, 1, and if we will add 2, 0, 1 plus 0, 2, we will have 0, 2. Okay. So this is mine. And this is mine. Here into you can understand this. So what we need to do, we need to add on this 2 lines.